We are beginning with the last session of the day, that is coping with uncertainty. I am fortunate to introduce Mrs. Priya Sawant. Mrs. Priya Sawant is an international transformational success coach, author, and positive psychology practitioner. She is an avid learner and holds a master degree in chemistry, industrial psychology, and clinical psychology. She has done B.Ed from Mumbai University. She is an alumnus of Department of Management Studies, IIT Delhi. She started her career as research scientist at NR Chemicals, Mumbai, and later in Raptorcus and Brett Limited, Mumbai. She has also worked with senior scientists of Baba Atomic Research Center for developing excipient formulation. Her paper on stress management has been published in International Research Journal. She is also an author and a social activist. She has been felicitated with many national and international awards. She has also been felicitated at Women Entrepreneurship Forum at Florida, USA in March 2019. She has also been felicitated at British Parliament UK June 2019 and by Punjab Governor at Punjab Raj Bhavan in October 2009. She has been felicitated with many national and international awards. She has also been felicitated at Women Entrepreneurship Forum at Florida, USA in March 2019. She's also been felicitated at British Parliament UK June 2019 and by Punjab Governor at Punjab Raj Bhavan in October 2019. Mrs. Priya Savant's philosophy of life is all about learning and gaining knowledge, utilizing it for humanity and contributing for societal development. This philosophy of life by Mrs. Priya Savant can be guiding principle for students. Now, I would like to hand over to Mrs. Priya Savant. Welcome, ma'am. Thank you so much, Dhvani madam. You introduced me. Thanks for all those kind words. And now it's like, I am feeling the burden, I have to live up to the expectations. So today's topic is coping up with uncertainty during C19 lockdown. C19 has totally changed our world. है ना, पूरा upside down हो गया है. हम लोग सारे we are not used to such kind of lockdown. Somebody asked, that day somebody was asking in the session, मैम लॉकअप और लॉकडाउन में क्या डिफरेंस है? तो लॉकअप में अगर आप लोग बाहर हो तो मार पड़ती है, लॉकडाउन में बाहर निकलो तो मार पड़ती है आजकल. You have to be inside your home for your own safety and for the safety of others. And so wonderfully you people are utilizing your time because definitely initially तो हम सबने बहुत enjoy किया कि uncertainty है, तो पता नहीं है लॉकडाउन कब तक चलेगा, तो we were all in a happy mood कि कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कोई routine timetable नहीं, right? तो everybody was so happy. लेकिन जब ये अभी बढ़ने लगा तो it was like पता नहीं है कब खत्म होगा. So we all started to feeling that uncertainty. ये कब तक चलेगा पता नहीं, क्या होगा आगे पता नहीं, एग्जाम्स कब होंगे पता नहीं, what will be our future पता नहीं, will we be able to survive in all this, from this infectious disease पता नहीं, because you don't know the symptoms. So it says the world is full of uncertainty, right? And that uncertainty is giving us kind of stress, right? Next slide please ma'am. तो अभी हमने क्या करना है कि हमें जो हम लोग बार बार अभी हमारा फोकस ये अनसर्टेनिटी पे जा रहा है, we are in the beginning of the session only, एक चीज हम लोग सोच लेंगे कि what are we most worried about it. कोई किसी को लग रहा होगा कि मुझे अभी प्लेसमेंट की टेंशन है, किसी को फैमिली रिलेशंस, फैमिली में कुछ टेंशन चल रही होगी उसके बारे में टेंशन है, बिकॉज आई बिलीव दिस इज अ फिक्स्ड ग्रुप, राइट? सो जो स्टूडेंट्स है उनके लाइफ में फ्रेंड्स आर इम्पोर्टेंट, फ्रेंड्स को लेके कुछ टेंशन चल रही होगी, somebody must be experiencing health issues, है ना? तो बहुत सारे अलग अलग हमारे लाइफ में, these are the
5 pillars मैं कहती हूँ, these are all 5 VIPs of our life, कि जिसके बिना हमारी सारी जो लाइफ है ना, ये इनके इर्द गिर्द चलती है. हमारा वर्क, हमारा फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हमारा हेल्थ, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज हमारी spirit, means what, our life energy, and to be able to feel motivated and enthusiastic about life. So that is the spirit I'm talking about. So ये 5 चीजें जो है, ये हमारे लाइफ के VIPs है. हमारी जो सारी टेंशन है, हमारी जो सारी वरीज है, वो इन्हीं को लेके होती है मेनली. तो हम आज का सेशन शुरू करेंगे बाय चेंजिंग द लाइफ स्टेटमेंट. हमने क्या करना है, आप लोग बाद में कर सकते हैं ये. आपके पास अगर नोटपैड होगा, अभी अगर पेन होगा, तो यू कैन डू इट नाउ ऑल्सो, एंड यू कैन सिंपली राइट, आई हैव अ स्ट्रेसफुल लाइफ, and now you are going to change this life statement of being stressed to, I will learn how to come back on track and live a balanced life and leave no place for stress. तो हमने हमारा लिख के ये लाइफ स्टेटमेंट चेंज करना है रिगार्डिंग द स्ट्रेस इन अवर लाइफ. लिख के क्यों करना है? बिकॉज जब हम लिखते हैं तो आप अपने आप से कमिटेड हो जाते हो. यू आर काइंड ऑफ साइनिंग अ बॉन्ड विथ योरसेल्फ, राइट? इसीलिए हमने लिखना है कि अभी आई एम गोइंग टू टेक चार्ज ऑफ माई लाइफ एंड आई एम गोइंग टू लर्न न्यू वेज, न्यू टेक्निक, एंड आई एम गोइंग टू इक्विप माई सेल्फ एंड मेक माई सेल्फ फिट टू डील विद द अनसर्टेनिटी इन लाइफ, राइट? नेक्स्ट स्लाइड मैम. उसके बाद ये जो अभी कोविड-19 का पैंडेमिक है, तो इसमें हम लोग आइसोलेटेड है, राइट? और उसकी वजह से एक अलग ही प्रकार की एंजाइटी आ रही है हमारे लाइफ. मैं अगर आपसे बात करूं तो इवन स्टूडेंट्स आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स. आई वाज काउंसलिंग वन स्टूडेंट, शी इज फ्रॉम बैंगलोर, मस्ट बी ऑफ योर एज. नाम उसका नमिता, मैं नाम बदल के बात कर रही हूँ. तो शी वाज अ 21-year-old स्टूडेंट फ्रॉम बैंगलोर, और उसको आदत थी कि हाथ बार बार धोने की, because she used to get so worried about the infection, about the cleanliness, and we were trying our level best to treat her. अब ये पैंडेमिक की वजह से क्या हो गया कि अगेन जो उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, she had come to the stage उसमें से वो बाहर निकलने वाली थी. अब अगेन the interaction has broken, she has become more uncertain कि मैं जो कर रही हूँ वो ठीक है और ये ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, and I'm doing the right thing. So now again she's washing her hands 100 times in a day for every single usage of handling things, or if she picks up a thing, she gets scared and she's washing. She is getting fear of uncertainty that she might be fall victim of infection. एक सुभाष करके लड़का है, he is a corporate guy. उसको आदत थी कि उसको लगता था कि जो भी अगर सिम्टम्स बताए जाते थे, उसको लगता था वो सिम्टम्स मुझे है. अगेन अब ये C-19 की वजह से घर में है, कोई चीखता भी है तो उसको लगता है कि नहीं, नाउ आई एम द वन जिसको ये सब होगा. तो एक प्रकार का डर लोगों के मन में बैठा हुआ है, और ये तो है ही है. उसके बावजूद लोगों को लग रहा है कि अब मुझे जॉब नहीं मिलेगी. Many people have become jobless. So it's kind of mental uneasiness employees are facing in the corporate, right? And not only that, even in the college faculties, उनको भी बहुत सारी मतलब टेंशन है अभी, because students कब आएंगे, कैसे रेगुलर कॉलेज शुरू होगा. They are also very uncertain about their future. अभी कल ही एक डेंटल कॉलेज की फैकल्टी से मेरी बात हो रही थी, तो she was like, since today they are going to have regular college, faculties are going to the college, and now what they are going to do, they are very uncertain about their role because there are no students. What are they going to do after going to college? But then now they are preparing the non-teaching staff to handle the C-19 situation, because they are also the one who needs to be educated, right?
उसके बाद स्टूडेंट्स को तो है ही है, देन इवन द एथलीट्स, अभी हमें पता होगा कि ओलंपिक्स 2020 वाज प्लान्ड, राइट? सो द एथलीट्स दे हैड पुट देयर हार्ट एंड सोल इन प्रिपरेशन, उनको भी दे आर आल्सो फीलिंग दैट अनसर्टेनिटी कि अभी अगर दोबारा से अगर होंगे तो क्या हमारा फ्यूचर, जो हमारी मेहनत है, वो उसी प्रकार का परफॉर्मेंस दे पाएंगी? बिकॉज इन्होंने अपना पूरा स्वेट एंड ब्लड लगा दिया था अपना परफॉर्मेंस एकदम पीक लेवल का करने के लिए. अब दे आर नॉट गोइंग टू जिम, दे आर नॉट एबल टू फॉलो द डाइट, दे आर फीलिंग लोनली, दे आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, बिकॉज अभी यहाँ अभी बिल्कुल नेक्स्ट अभी नाउ बिल्कुल अभी आने वाला था ओलंपिक्स, एंड दे वर ऑल हाईली सुपर मोटिवेटेड कि हमने जो भी मेहनत करी है सालों से, एंड दिस इज द टाइम वी आर गोइंग टू गेट द फ्रूट फॉर आवर हार्ड वर्क. और एकदम से ये सिचुएशन आ गई, तो नाउ दे आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, एंड नाउ दे हैव इश्यूज लाइक स्लीपलेसनेस, बिकॉज उनको पता नहीं अभी मैंने तो सारा मेरा करियर दांव पे लगा दिया. कितने सारे बच्चे होंगे कि जिन्होंने पढ़ाई को साइडलाइन करके इसके ऊपर फोकस किया था. अब विद ऑल दिस थिंग हैपनिंग, अब पता नहीं उनका कैसे होगा. अब नेक्स्ट स्लाइड. सो ये जो C-19 का क्राइसिस है, इट्स रियली मतलब इम्पैक्टिंग and affecting each and every person of the society. So, so even the people who are treating the patients, even the police force who are, protecting us, they are also, symptoms of this pandemic, C-19 virus. And really, there is so much of uncertainty about life, because we are treating other people life, we are not sure about ours. So that is the anxiety which is bothering them. We read in the newspaper कि कितने सारे पुलिस लोग, पुलिस पीपल, पुलिस पर्सन, उनको कोरोना हो गया, या डॉक्टर्स को भी हो रहा है. सो एवरीबडी इज और ये अभी सिचुएशन नॉर्मलाइज होने में टाइम लगेगा. So we have to cope up with it, right? We have to deal with this situation. और even ये सारी चीजें अगर normalize भी हो जाएगी, so that fear, that anxiety, that uncertainty is going to remain. Because we don't know the symptoms. So unless and until the vaccine is, we get the vaccine, we are not going to be very, very sure whether we should mingle, whether we should have the socializing. And we being human beings, we are human beings, we are social animals. So हम लोग बगैर सोसाइटी के, बगैर सोशल इंटरेक्शन से रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. सो इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें हमारी इमोशनल हेल्थ को बहुत बहुत केयर करना है. बिकॉज अगर आप फिजिकली हर्ट हो जाते हो, यू कैन पुट द बैंडेज, बट अभी तक ऐसी कोई बैंडेज नहीं है जो आप अपने माइंड पे, अपने हाथ पे लगा दो, राइट? सो हमें हमारा ख्याल रखना है. कैसे रखेंगे? कि ये जो अभी ह्यूज चेंजेस बन रहे हैं हमारे डेली रूटीन में, उसको कोप अप करने की स्ट्रेंथ हमें डेवलप करनी है. हमें अपने इमोशनल स्किल्स डेवलप करने हैं, राइट? सो हमें और भी इमोशनली स्ट्रांग बनना है. एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आपके कॉलेज की तरफ से, एंड दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट सेशन. हमें बहुत सारी, कई बार लगता है ये चीजें तो हम कर लेंगे, बट देयर आर सेवरल एस्पेक्ट टू इट, है ना? हम लोग बहुत चीजें जानते हैं, पर उसको कई बार हम प्रैक्टिकल यूसेज उसका भूल जाते हैं. सो इसीलिए today's session is very very important. Rather, each and every session which will be organized by your college, it's going to be important, because the college, the universities, they are preparing their students, gradually to cope up with this new kind of changes in the educational field as well. So you have to take this advantage. Give your 100%. Telling you कि आपको इस चीजों को, आपको emotionally strong बनना है to deal with the uncertainties of life. तो आपको जो है, आपको anxiety
और ये जो आइसोलेशन की वजह से हो रहा है ड्यूरिंग क्वारंटाइन पीरियड, उसकी वजह से आपको आपको अपने आप को सक्षम बनाना है। तो कैसे करोगे? तो यू हैव टू कीप योरसेल्फ इन्फॉर्म्ड, listen to the advice and recommendation from your national and local authorities. आप टीवी चैनल्स देखते हो, मेक द लिमिटेड यूसेज, और जो सही है, जो ऑथेंटिक है, उनको सुनो आप। उसके बाद मैं रूटीन की बात कर रही थी। हैव अ रूटीन। कई बच्चे, इवन माय ओन सन, I many times I see he's awake till 2 o'clock in the night, and morning you people get up late. It's okay, but have fixed routine. Means what? If you're sleeping late and getting up late, doesn't matter, but make that you make sure that you will have a sufficient sleep. Because अगर आपका नींद पूरी नहीं हुई है, तो you will not feel healthy, you will not feel active throughout the day. तो आपको आपका रूटीन बनाए रखना है, चाहे वो कोई भी हो। कोई बच्चे देरी से उठते होंगे, कोई दोपहर में सो रहे होंगे, इट्स ओके, बट हैव अ 50, करेक्ट। आपको आपके ईटिंग हैबिट्स के ऊपर भी ध्यान देना है, बिकॉज इसमें क्या हो रहा है कि आप लोगों का कोई टाइम टेबल नहीं बन पा रहा है। कुछ दिनों तक ठीक था, बट नाउ आफ्टर डूइंग दैट, नाउ दिस इज गोइंग टू बी अनश्योर, दिस इज गोइंग टू बी अनसर्टेन, ये कब तक हमारा लाइफस्टाइल होगा। नाउ वी हैव टू लर्न द स्ट्रैटेजीज, डील विद इट इफेक्टिवली। और इसके लिए हमें जरूरी है कि हमें इसमें भी अपना रूटीन बनाना है। जस्ट ट्राई टू रिमेम्बर दोज डेज जब आप लोग कॉलेज के लिए तैयार होते थे, जब आप लोग लंच टाइम से करते थे, जब आप चाहे वो कैंटीन जाके खा रहे हो, लेकिन यू हैड सर्टेन फिक्स रूटीन। शाम को अपने घर आना, शाम को आपने कुछ नोट्स बना रहे हो, देन आप सोते थे टाइम से, बिकॉज मुझे कॉलेज जल्दी जाना है। So there was a routine, and that's why you were feeling that my life was sorted. So you can now think that your future is in your hand now. You can make the best utilization of this time to learn new skills. आपको कई बच्चों को कुछ हॉबीज होंगी तो जिसको आपको टाइम नहीं मिल रहा था, so you are getting bonus time. You can learn to play guitar or any other instrument which you think you can play. You can learn new skills, अपने फैमिली के साथ टाइम बिताओ, करेक्ट। नई बुक्स रीड करो, learn some new language. See, I'm learning Spanish and I'm feeling so good about it. So कुछ ना कुछ एक नया सीखो, because अगर आप कुछ नया सीखते हो तो आपका मोटिवेशन, आपको एक जो फील गुड फैक्टर है ना, वो बरकरार रहता है। Now is the time you have to care for your elderly people also. अभी क्या हो रहा है घर में, सबको देख के जो छोटे बच्चे हैं और जो बुजुर्ग है वो बहुत खुश हो रहे हैं, बिकॉज आप लोगों के पास टाइम नहीं होता उनको देने के लिए, एंड दे हैव सर्टेन एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू। अब लेकिन अभी आप लोग घर पे हो, एवरीबडी इज क्लिंग टू द मोबाइल्स, तो प्लीज, और उनके पास कुछ नहीं है, तो उनको लगता है कि ये लोग सारे घर पे हैं, लेकिन सारे अपने व्हाट्सएप पे, सारे मोबाइल पे, सारे इंटरनेट पे बिजी है, तो उनको एक अनवांटेड सी फीलिंग आती है। तो आपका ये फर्ज बनता है कि थोड़ा ध्यान उनको भी दो, थोड़ा टाइम उनके पास भी दो। अगर नहीं एल्डरली पर्सन आपके घर में है, आपके पेरेंट्स है, आपके ब्रदर्स है, आपके सिबलिंग्स है ना, तो आपके कजिन ब्रदर्स है, उनको फोन करो, उनसे बात करो। Have some time for your family. Have some time for relation buildings, right? Now, can you see a picture of Hanky below this picture? A blessing in desert से नीचे handkerchief का picture दिया हुआ है, correct? अब उसका मैं बताती हूँ ये क्यों दिया है मैंने। See, life is so uncertain. हमारा जो life है, हम लोग जब कहाँ बर्थ लेते हैं हमें नहीं पता होता है, करेक्ट। तो हमारा बर्थ की शुरुआत ही अनसर्टेनिटी से होती है। अगर हमें पता होता कि हम किस घर में जन्म लेंगे, हमारे पेरेंट्स कौन होते, तो मेरे ख्याल से सब लोग एक एप्लीकेशन अंबानी के नाम से दे देते, है ना, कि आई वांट टू बी इन
born in the such kind of families. So we start our journey from the uncertainty. और हमारा लाइफ का कैसे मोड मतलब कैसे जाएगी जिंदगी वो भी हमें पता नहीं है। 10th के बाद हमने क्या स्ट्रीम लेनी है और उसके बाद हमने कौन सा करियर फील्ड चूज करना है, हमारा जॉब कैसे होगा या वेदर वी विल बी स्टार्टिंग अवर ओन बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप में हमें इंटरेस्ट है, हम लोग सोचते रहते हैं, राइट। एंड इसीलिए लाइफ का मजा भी उसी में है। सो एंजॉय दिस अनसर्टेनिटी, है ना, don't feel frustrated. Just now you have the time to do so many things. पहले हम बोलते थे हमारे पास टाइम नहीं, और अभी हमारे पास टाइम एक ऐसी प्रेशियस कमोडिटी है जो बहुत रेयरली मिलती है हमें। कहते हैं ना एक बार टाइम निकल गया तो निकल गया। तो टाइम एक बहती नदी की तरह है, जैसे वो हमेशा आगे ही जाती है, कभी हमने नदी को पीछे जाते हुए देखा है नहीं, राइट। सो हमारी जो जिंदगी में ये टाइम हमें मिला है तो उसका आप सही यूज करो। अब ये कैसे यूज करना है आपके ऊपर है। भगवान ने सबको 24 घंटे दिए हैं, तो आप कैसे यूज करोगे वो आपके ऊपर है, बिकॉज आपका फ्यूचर आपके हाथ में। ये टाइम आप यूज करोगे आपके फ्यूचर बिल्डिंग के लिए। सो नाउ यू नो, मैं अभी आपको पता है कि ये ऑनलाइन का जमाना है सारा, तो डेवलप योर न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजी, इसके साथ आप टेक सेवी बनो। तो इवन आपने कैसे करना है, कैसे सबमिशन करना है, आई एम श्योर आजकल की जो जनरेशन है वो तो काफी हद तक टेक सेवी है, बट लर्न अ न्यू स्किल related to internet, related to online technology. That is very very essential for you, and you have creativity in you. Try to figure it out कि आप क्या कर सकते हो। Because see, I can share it my experience, because I started writing Hindi poetry, which I was कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं कुछ पोएट्रीज करूंगी, बिकॉज आई वाज अ साइंस स्टूडेंट। मेरी लाइफ जो थी और मेरी जो स्टूडेंट लाइफ थी, इट वाज ऑल अबाउट कॉलेज जाना, जर्नल कंप्लीट करना, प्रैक्टिकल्स, नोट्स बनाना, राइट। सो इट वाज दैट, और कभी उसके बियॉन्ड हमने सोचा ही नहीं। तो जब मुझे लाइफ में कभी भी टाइम मिला, so I realized कि I have such a talent which God has given me, and I nurtured it. So like that, each one of us, we have some talent. See, बचपन से हमारे रिपोर्ट कार्ड में आता है he or she has got immense potential, he can do better. So now the time has come कि आप अपने आप को टाइम दोगे और अपने अंदर जो पोटेंशियल है उसको आप नर्चर करो। करेक्ट। अब सचिन तेंदुलकर वाज ब्लेस्ड विद स्पोर्ट्समैन का टैलेंट, उसने नर्चर किया, एंड नाउ टुडे ही इज व्हाट ही इज, राइट। लता मंगेशकर जी है। सो आपके पास भी वो टैलेंट है, लेकिन हमें उसको, हम रूटीन में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें उसके तरफ ध्यान देने के लिए ही टाइम नहीं मिलता। तो अभी आपके पास टाइम है। जब हम बात करते हैं कि, अब मैं बात करी थी कि टाइम को यूटिलाइज करो, पर कई बार हमें लगता है कि बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो अभी हम लोग इस पैंडेमिक में क्या कंट्रोल कर सकते हैं? देयर आर सो मेनी थिंग्स कि वी कैन नॉट कंट्रोल, कि दूसरा कोई बंदा है उसका बिहेवियर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, है। जो एंजाइटी है वो तो आएगी, उसको कंट्रोल हमारे हाथ में है, लेकिन हमें ऐसे लगता है we cannot control that fear. So now we have to shift our focus from thinking about the things which are not in our control to the things which are under our control. So most of us actually we have a tremendous fear of control. बहुत सारा चीजें हैं जो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। वी कैन कंट्रोल हू वी आर, मतलब क्या कि हमें किस तरह से बनना है, एंड व्हाट वी स्टैंड फॉर इन द फेस ऑफ इट, राइट। तो उसी तरह से हम ग्रूमिंग करना शुरू कर सकते हैं। वी कैन कंट्रोल व्हाट वी रीड एंड व्हाट वी शेयर, वी कैन एनरिच आवर नॉलेज
and we can share that enriched knowledge with other people to create a kind of surrounding which will be beneficial for us to grow. Correct? उसके बाद we can control how we listen to and support the people around us. इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद. So to feel more in control कि हमें हमेशा ये चीज ध्यान में रखो कि we are in the driver's seat of our life. अगर हमने हिम्मत हार, जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो यू हैव कंट्रोल कि क्या स्पीड रखना है, किस डायरेक्शन में जाना है, राइट? सो वैसे ही यू हैव द कंट्रोल अबाउट द चॉइसेस ऑफ योर थॉट्स. You have the control about the choices, about your feelings, about your actions. So take total control, right? Take the control and know it that you have the control on what choices you make in your life, है ना? तो हमारी लाइफ में क्या choices करने हैं ये हमारे हाथ में है. कौन से फीलिंग्स के ऊपर हमने फोकस करना है. ये जो अनसर्टेनिटी है, अगर हमने इसके ऊपर ज्यादा फोकस कर लिया तो हम लोग ट्रैक से साइडलाइन हो सकते हैं. हमें लगेगा कि हमारा फ्यूचर बिल्कुल मतलब डामाडोल है, अभी कुछ कर नहीं पाएंगे हम. जो मेरे पास लर्निंग थी तो उसको मैं अगर आगे यूज नहीं कर पाऊंगा तो पता नहीं मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. यू हैव टू नाउ ब्रेक द ओल्ड पैटर्न्स. मतलब क्या कि हमें हमारी थिंकिंग चेंज करनी है. करेक्ट? अभी सबसे पहले जब हम बार बार बात कर रहे हैं कि हमें कोप अप करना है तो कोप अप करना है मतलब क्या, टू वर्क ऑन अवर इमोशंस. और इमोशंस कहाँ से स्टार्ट होती है? जो आपकी फीलिंग्स होती है. तो इसीलिए आपको जो अपना ओल्ड पैटर्न है थिंकिंग का, आप सोच के देखो. आपके फ्रेंड्स आपके बारे में प्रेडिक्ट करेंगे, आप खुद भी प्रेडिक्ट कर, अच्छा वो ना वो ऐसे ही बिहेव करता है. आप किसी मैम के साथ जाते हो, आपने उसके उनके बारे में एक जजमेंट बनाया होता है आपने कि ये मैम तो ऐसी ही है, ये मैम बहुत लीनियंट है, ये मैम बहुत अच्छी है, ये सर बहुत खड़ूस है ना? तो यू नो कि आप उनका जो बिहेवियर है, जो उनका बिहेवियर पैटर्न है, उसके हिसाब से आप करते हो कि यू नो दैट दैट पर्सन इज गोइंग टू बिहेव इन दैट पर्टिकुलर वे. सो यू नाउ फोकस ऑन योरसेल्फ कि आपका खुद का पैटर्न क्या है, आपका खुद का बिहेवियरल पैटर्न क्या है. कि आपको अभी आप तक दूसरों के बारे में आप जजमेंट करते थे, अभी आपको खुद को जज करना है क्योंकि आपके पास उतना टाइम है ना? हम लोग लोगों को क्रिटिसाइज करने में अभी तक अपना टाइम डालते थे. कमेंट पास करो इसके ऊपर, इसके बारे में बात करो. जरूरी नहीं सब करते हैं, बट कुछ कुछ है ऐसे जो करते हैं ये चीजें. तो अभी हमने फोकस करना है अपने खुद को जज करने के लिए. यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट, एक सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि मेरे में क्या कमियां हैं, है ना? कि जिनके ऊपर मैं काम करना चाहिए मुझे, कि क्या वो पैटर्न है जो मुझे आगे बढ़ने से रोकते हैं. सो यू हैव टू लर्न न्यू हैबिट्स, डेवलप न्यू थिंकिंग पैटर्न. और ये आपको आपके पर्पस के पास लेके जाएगा. तो आपको देखना पड़ेगा कि हमारे पास बहुत चीजें हैं पर हमारा कंट्रोल नहीं है, बट हमारे पास एक बहुत बड़ा एसेट है कि जो है हमारा हेल्दी माइंडसेट. अगर हमारा माइंडसेट स्ट्रांग होगा तो हम लोग बहुत इफेक्टिवली ये जो कोरोना वायरस पैंडेमिक है उसकी जो अनसर्टेनिटी है उसके साथ डील कर सकते हैं. और दूसरी बात कि we all are different in how much uncertainty we can tolerate in life. हर एक का रिएक्शन अलग होता है. तो you have to cope up with uncertainty of behavior of others too. हम लोग क्या करते हैं, एक जब भी हम लोग एंशियस या वरीड फील करते हैं तो कभी भी हमें फियरफुल लगता है लाइफ के बारे में, तो हम लोग वरी को यूजफुल बना देते हैं. मतलब क्या,
हम लोग को लगता है कि मैं अगर उसके बारे में बहुत चिंता करूंगा, बहुत अगर सोचूंगा कि कैसे मुझे करना है, कैसे सिचुएशन में बिहेव करना है, तो कुछ फायदा होगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। चिंता करना इज नॉट द सॉल्यूशन। टू वरी इज नॉट एट ऑल अ सॉल्यूशन। बिकॉज जब आप चिंता करते हो, जब आप वरीड हो, चाहे एग्जाम के रिजल्ट को लेके, या एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस कैसे होगा, या बहुत सारी चीजें हैं जो स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड है, आप लोग अगर चिंता करते हो, वरीड हो, तो इसका मतलब यू आर फोकसिंग ऑन द नेगेटिविटीज, you are focusing on the things which are hurdles, which are stopping you make the progress. तो वो आपने रोकना है उस चीज को। स्टॉप यूज ऑफ वरिंग टू। तो अभी आपको क्या करना होगा, क्या टू डू द न्यू सर्टिफिकेशन। एक वो सर्टिफिकेशन कोर्स करना है आपने, FCLR। व्हाट इज दैट? You have to focus on controlling those things which are under your control. उसके बाद challenge your need for certainty means what? हम लोग चाहते हैं कि हमारे लाइफ में सब चीजें सॉर्टेड आउट हो, करेक्ट। हम चाहते हैं कि जब भी हम लोग रोड से भी क्रॉस करना चाहते हैं, रोड पे जाते हैं, तो वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। क्या जाऊंगा मैं रोड से, सारी जो व्हीकल से आजू बाजू वाली बिल्कुल अपने नॉर्मल एवरेज स्पीड से जा रही, और मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, है ना। यू आर सर्टेन अबाउट इट बिकॉज रिस्क फैक्टर मिनिमल है इसमें। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि यू थिंक दैट कि मेरे साथ सब सही होगा। यू वांट एक अश्योरेंस लाइफ से कि मेरे लाइफ में पूरा सब कुछ सही होगा। So now you have to challenge your need for certainty because why? You are facing uncertainty, correct? आपको वो स्किल डेवलप करना है। उसके बाद लर्न टू बेटर टॉलरेट, इवन एम्ब्रेस करो ये जो अनअवॉइडेबल अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ है। because unless and until you accept, you will not act. So you have to accept the things. और जब भी आप एक्सेप्ट करोगे इस सिचुएशन को, तभी आप उसके बारे में एक्स्ट्रा थिंकिंग रोकोगे। यू विल नॉट डिस्कस। आजकल किसी को फोन भी करो, चाहे बर्थडे विश के लिए करो, किसी और वजह से करो, घूम फिर के टॉपिक कोरोना पे आता है। स्टॉप डिस्कसिंग दैट। डिस्कस what are the new strategies and new things you can do for making your life better, right? तो वो चीजें डिस्कस करो। स्टॉप डिस्कसिंग ये क्या हो रहा है, कैसे अभी तो और ज्यादा बुरा होगा, गवर्नमेंट ने अभी ये हॉस्पिटल्स बना रही है, बेड प्रिपेयर कर रही है, इसका मतलब ये बढ़ता जाएगा। सो टॉकिंग, सी दे आर द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, दे आर डूइंग द नीडफुल, है ना। जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं वो उसके ऊपर सोच रहे हैं और नेसेसरी एक्शंस ले रहे हैं। हमारा काम क्या है? हमारा काम वो नहीं है कि उनको डिस्कस करो कि उनकी कमियां क्या है। अरे उनको तो ऐसे करना चाहिए था, उनको तो लॉकडाउन पहले शुरू करना चाहिए था, इन्होंने गवर्नमेंट ने ये ठीक नहीं करा। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर एनर्जी ऑन सच थिंग्स। all these people they're trying to their level best। हाँ, अगर आपके कहने से, आपके बोलने से कुछ फायदा है, तब जरूर उसमें पार्टिसिपेट करो। अगर आप ओपन फोरम में डिस्कस करते हो, इंटरेक्ट करते हो और कुछ इनपुट्स देना चाहते हो जो कि काम आएंगे गवर्नमेंट के, जरूर दो। लेकिन अपनी एनर्जी, अपना टाइम इन चीजों के लिए वेस्ट मत करो, बिकॉज जो आप बार बार बोलोगे ना, वही चीजों के बारे में आप सोचते हो। So keep on doing your best of efforts to become best of you. Put your efforts in that. Reduce your anxiety and reduce your stress levels. वो चीज आपने करनी है। And you have to, what you can do is अपने आप को allow करो to feel uncertain. Accept ये चीजें हैं and I'm accepting this। एक बार acceptance कर लिया, then you feel peaceful। So you have to accept uncertainty
इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ प्लान नहीं बनाना है। तो कई बच्चे समझेंगे अच्छा अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, अभी हमने इस तरह से लाइफ हमारी है। मतलब क्या कि आपको ये नहीं है कि आपने अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर लिया मतलब जो दिन जिस तरह से आ रहा है उसको मैं वैसे ही गुजारूंगा। नो, व्हेन आई एम सेइंग एक्सेप्ट दिस अनसर्टेनिटी का मतलब है आई मीन कि नाउ यू फोकस ऑन what things you can do in your life. So stop thinking about your worries. Focus on the action plan. कि मुझे अभी क्या करना है। एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ मैं कि एक बच्चा था और he was also very anxious और very fearful about the future. हमेशा उसको डर लगा रहता था कि पता नहीं सारी गलत चीजें मेरे साथ ही होगी, मैं इतना एफर्ट डालता हूँ। And then he used to blame the circumstances. He used to blame the people in his life. जो चीजें हो रही है ये उन्हीं की वजह से हो रही है। So one fine day, one of his teacher, she said, Ajay, I'll tell you something. So luckily, that time they were doing some experiment, and there were three things lying on the table. So what she said, she asked that Ajay, आपने एक काम करना है, घर जाके अपने गैस पे 3 पतीले रखो, 3 यूटेंसिल रखो, तीनों में आपने उबलता हुआ पानी लेना है। एक काम करना, एक पतीले में आपने एक डालना है अंडा, दूसरे में आप डालोगे पोटैटो आलू, और तीसरे में आप डालोगे कॉफी। अभी आप लोग ये सिनेरियो सोच के देखो, जो वो एक था, so all these three elements, 3 objects, they were given the same situation. They all were made to face a troublesome situation, that is the boiling water. तो एग जो हम लोग फ्रेजाइल मानते हैं, अंडा जो बहुत ही डेलिकेट सा होता है, नीचे गिरने से भी टूट सकता है, तो जब उसने उस उबलते हुए पानी का सामना करा तो वो पानी से निकालेंगे हम लोग तो कैसे बनेगा, हार्ड, राइट, इट विल बी टफ, टूटेगा नहीं। वेरस जो आलू है, पोटैटो, वो सख्त होता है, जब उबलते हुए पानी में डालोगे आप उसको, वो सॉफ्ट बन जाता है। मतलब क्या, जो पीपल, जो लोग बहुत सख्त समझते हैं, जो समझते हैं कि हम लोग किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, बट कई बार जिंदगी में ऐसी चीजें आती हैं उनका सामना नहीं कर पाते, इमोशनली वीक हो जाते हैं और वो टूट जाते हैं। जैसे तो मैंने तीसरी चीज बताई थी कॉफी पाउडर। अजय की टीचर ने भी उनको वही बताया, जब कॉफी पाउडर उबलते हुए पानी में जाएगी तो वो क्या करेगी, पानी का रंग ही चेंज कर देगी, करेक्ट, it will change the circumstances and it will take the circumstances in its own control, एक अलग ही रुख दे देगी। तो हमें भी ऐसे ही करना है। अभी हमें फोकस ऑन द प्रेजेंट करना है, हमें ये जो सिचुएशंस है इसको हमारे फेवर में होल्ड करना है। इसका मतलब क्या है कि हमने फ्यूचर को कैसे हम लोग अपने कंट्रोल में ले सकते हैं, उसके ऊपर हमने ध्यान देना है। अपनी हैबिट्स को हमने नई हैबिट्स बनानी है, करेक्ट, और उसके लिए हमें बहुत जरूरी है कि हमें प्रेजेंट सिचुएशन पे ध्यान देना है। वो कहते हैं ना, अगर आप लोग एंशियस हो तो दैट मीन्स यू आर लिविंग इन फ्यूचर, इफ यू आर स्ट्रेस यू आर लिविंग इन पास्ट, बिकॉज पास्ट में जो घटना घटी है उसको लेके आप परेशान हो, उसको लेके आप चिंता कर रहे हो। बट अगर आप प्रेजेंट में हो तो इसका मतलब आप स्ट्रेस नहीं महसूस करते, आप फ्यूचर के बारे में वरीड नहीं होते। आप छोटे बच्चों को देखो, they will be always in a happy mood. Why? Because they are not worried about future. They're least bothered what has happened yesterday, right? वो regret नहीं करते। तो
आपको you being a mature individual, you have to learn from the past. You don't have to keep on regretting, right? Make some correction and be in present. Live in present and make your present the best one. इसीलिए कहते हैं ना, it is a gift and that is why it is called as present. Focus करना है, but कैसे करना है? So first thing is get moving. मतलब क्या है? Be at pace with the situation and decide your action plan. क्या मुझे इस तरह से लाइफ को शेप करना है? Be the architect of your own future. Make a blueprint. मुझे अपने सक्सेस का एक ब्लूप्रिंट बनाना है. देखो घर भी बनाते हो आप, एक ब्लूप्रिंट बनाते हो, करेक्ट? तो कोई भी चीजें है ना, दो बार बनती है, एक बार आपके माइंड में और एक बार आपके रियलिटी में. तो इसी तरह से अभी आपने अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, एंग्शियस होके नहीं, प्रेजेंट में रह के. यू विल फोकस ऑन योर फ्यूचर. मेरा एक्शन प्लान क्या होगा? मेक अ ब्लूप्रिंट फॉर योर सक्सेस. डू माइंड मैपिंग. माइंड मैपिंग एक पावरफुल टेक्निक है कि जिसमें आप अपना एक्शन प्लान लेते हो, बनाते हो और उसके ऊपर आप सोचते हो कि मुझे क्या क्या चीजें उसके लिए चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने एक पेपर पे, जो A4 साइज का पेपर होता है ना, उसको लेना है आपने. सेंटर में आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो उसको लिखो. You want to join corporate, you want to start your own business, you want to enter into digital field, whatever it is, उसको लिखो. उसके बाद आपने उसको चारों ओर आपने लिखना है. उस वहां तक पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या चीजें करनी है. अगर मैंने आपको पूछा, आप में से कोई कल्याण में रहता होगा, कोई थाना में रहता होगा, कोई बदलापुर में रहता होगा, बट जब आपको कॉलेज जाना है तो यू डिसाइड अ रूट कि I will take auto to reach the railway station. From there I will walk down, whatever it is. इस तरह से जाऊंगा, right left whatever. तो इसी तरह से आपने अपने लाइफ का जो डेस्टिनेशन है वो चेंज भी हो सकता है बाद में, कोई बात जरूरी नहीं कि जो आपने आज सोचा, हो सकता है कुछ और आपने अपने आप को अपडेट कर लिया, उसके बाद आपको लगेगा कि नाउ आई एम इक्विप्ड विद मच मोर स्किल्स, आई कैन डू समथिंग डिफरेंट, समथिंग बेटर. वो भी चीज हो सकती है, तो उसको भी आप करो, नो प्रॉब्लम. लेकिन अनलेस एंड अंटिल आप एक एक्शन प्लान बनाओगे, यू विल नॉट स्टार्ट. करेक्ट? अगर आपको बोला जाएगा कि एग्जाम्स नहीं है, विल यू स्टडी? नो. आप पढ़ाई करते हो तभी करते हो जब आपको पता है कि मेरे पास कुछ टारगेट है, मेरे पास कुछ सिलेबस है. यू नो व्हाट शुड आई डू, व्हाट चैप्टर आई शुड रिवाइज. सो यू हैव एन एक्शन प्लान. तो वैसे ही एक्शन प्लान आपने बनाना है आपने फ्यूचर को लेकर. उसके बाद एक टाइम फॉर रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है. हम लोग को बहुत ज्यादा अपने आप को एक्सर्ट नहीं करना है. आप कितना भी सोचो, कुछ चीजें, अब ये C19 ने भी हमें बता दिया कि देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपके कंट्रोल में है. तो जो चीजें आपके कंट्रोल में है वो आपने करनी. तो जैसे आप अपने माइंड को ओवर यूटिलाइज नहीं करोगे, गिव इट अ ब्रेक सो दैट वो ब्रेक के बाद थोड़ा सा फ्रेश होके और अच्छे से सोचेगा और एनर्जेटिक वे में सोचेगा. कई बार आप थक जाते हो, यू टेक नैप, अ पावर नैप, और उसके बाद आपको यू फील सो एनर्जाइज्ड. उसी तरह से आप जब भी आपको एक्शन प्लान के बारे में मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको थोड़ा सा आपको एक माइंड को रिलैक्स करना है और एग्जर्ट नहीं करना है. और बहुत जरूरी है कि आपको सफिशिएंट स्लीप चाहिए. बिकॉज जब तक आप सफिशिएंट स्लीप नहीं लोगे, अभी ये हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस हैं. ये देखो सोशल मीडिया,
इट इज गुड इन अ वे। मैं तो कई बार ये सोचती हूँ कि अभी ये C19 में जिसके पास इंटरनेट नहीं होगा, जिसके पास व्हाट्सएप नहीं होगा, तो सबसे परेशान तो वो बंदा होगा, है ना? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया नहीं है, हमारी लाइफ बिल्कुल जीरो है। वी फील सो डल विदाउट सोशल मीडिया। तो अभी इस टाइम पे सोशल मीडिया को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। मतलब क्या, सोशल मीडिया ये जरूरी है, लेकिन कम यूज करो, मिनिमल यूज करो। Social contact is important because that is only thing now we can do for interacting with your friends, interacting with your peers, interacting with your relatives. आजकल तो बर्थडे वर्चुअली सेलिब्रेट होते हैं, और कितने सारे इवन नेमिंग सेरेमनी, कोई बोल रहा था शादियां लोग वहां घर पे बैठ के अटेंड कर रहे हैं। तो इन अ वे इट इज गुड, बट यूज इट इन अ वेरी मिनिमल वे। स्क्रीन टाइम को आप रिड्यूस करिए, because that becomes stainless to your eyes। और इंटरनेट से आपकी जो सोचने की क्षमता है उसके ऊपर भी असर पड़ता है। अगर आप कंटिन्यूअसली इंटरनेट यूज कर रहे हो, कंटिन्यूअसली आप गूगल पे हो, कंटिन्यूअसली आप मतलब सोशल मीडिया पे हो, तो यू फील ड्रेन्ड आउट आफ्टर सर्टेन टाइम्स। तो वो चीज आप देखो। कई बार आप देखा होगा आपने कि आप सोकर उठते भी हो तो यू गेट यू सो पैनिक कि मेरा मोबाइल कहाँ पे है। अगर गलती से भी मम्मी ने आपका मोबाइल कहीं और रख दिया और आपको नजर नहीं आया, तो यू फील सो एंशियस, सो वरीड कि पता नहीं मेरी कुछ वैल्यूएबल चीज खो गई। होती तो घर में ही है, बट यू डोंट फील रिलैक्स व्हेन यू डोंट सी योर मोबाइल। पहले चीज देखते जैसी आंखें खुलती है, टाइम भी देखना है, हम मोबाइल में देखते हैं, राइट? तो उसको आपने थोड़ा लिमिटेड यूज करो। उससे क्या है ना, आपका माइंड जो है ना थोड़ा सा और फ्रेश रहेगा। उसके बाद सोशल मीडिया आप यूज करो, लेकिन सिर्फ गॉसिपिंग के लिए मत करो। जो स्टूपिड से मैसेजेस है ना, वो आप ऐसे, यू एटलीस्ट यू टेक द डिसीजन, आई विल circulate only important valuable information in a day। एक आध दूसरे हल्के को, that's okay, but don't waste your time on making those TikTok videos। One is required, no doubt, but keep it limited। और अगर आपको सोशल मीडिया का यूज करना ही है, यू कैन सी यू कैन यूज इट इन अ वेरी कंस्ट्रक्टिव वे। नाउ हमारे जो IIT दिल्ली के जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स है, अभी जो रिसर्च फेलोज है, they are using it so beautifully। They have created a site by way they can help the poor and needy people। They're collecting funds, they're donating and distributing the food grains and vegetables, milk, everything, grocery to the poor people, because they don't have, they're staying in the hostel, they have got ample of time. So there is a group of senior students who is taking the charge to manage the funds. There is a group of students, and they all are doing it, they are using the social media so effectively। जब वो प्रॉब्लमेटिक इमोशन आपके लाइफ में एंटर करती है, तब आपकी लाइफ हेवायर हो जाती है। देखो, कई बार आप एग्जाम में जब जाते हो, तो आपको पता है कि आपने रात भर जग के मेहनत करके आपने वो चैप्टर तैयार करा है, वो सिलेबस तैयार करा है ना? यू फील कि आई एम प्रिपेयर्ड, आई डन माय बेस्ट। लेकिन जब आपको लगता है कि अगर मुझे याद नहीं आया, तो वो उस टाइप की इमोशंस आती है, आपको टेंशन आती है कि अगर कुछ भूल गया तो। सो दे आर द प्रॉब्लमेटिक इमोशंस। और उन प्रॉब्लमेटिक इमोशंस की वजह से आपकी मेमोरी अफेक्ट होती है, और कई चीजें आपने अच्छे से की है, लेकिन उस टाइम पे आपको याद नहीं आती। होता है ना ऐसे? तो इसीलिए आपको ये प्रॉब्लमेटिक इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए, सो दैट दे विल नॉट इंटरफेयर। इसके लिए कैसे करोगे? यू कैन सिलेक्ट द सिचुएशन जो आपको बार बार, अभी से आपने अपनी अपनी पर्सनालिटी भी डेवलप करनी है, इमोशनल पर्सनालिटी। कैसे? कि आपको पता है कि मैं इस सिचुएशन में इस तरह से बिहेव करता हूँ, मैं इंट्रोवर्ट इंडिविजुअल हूँ, है ना, इंसान हूँ, तो मुझ में क्या क्या मुझे चेंजेस करने हैं, वो करो आप।
एक कहानी मुझे याद आई अभी इसी बात को लेके। एक बंदा था जो कि आर्टिस्ट था और बहुत सुंदर मूर्तियां बनाता था। लोग उसकी तारीफें करते थे। एक उसने शिव जी की मूर्ति बनाई बहुत सुंदर पत्थर से, और सब लोग, जब भी जो कोई देखता बहुत तारीफ करता। तो उसने कहा कि मैंने एक्चुअली कुछ नहीं किया, ये जो मूर्ति थी वो इस पत्थर में पहले से थी। मैंने सिर्फ जो अनवांटेड चीजें थी, जो अनवांटेड पार्ट था, उसको हटा दिया, तो उसमें से ये मूर्ति निकल के आई है। वैसे ही एक सक्सेसफुल स्टूडेंट, एक सक्सेसफुल पर्सन आप सबको, तो अभी आपके पास टाइम है, वो यूटिलाइज करो। जो चीजें आपको एक सुंदर पर्सनालिटी बनने से, फुल्ली इम्प्रेसिव पर्सनालिटी बनने से रोक रही है, उसको आपने दूर करनी है, उस कमियों को आपने दूर करना है। मतलब क्या? लैंग्वेज सीखो। कई बच्चों को लगता है कि आई एम नॉट वेरी गुड इन इंग्लिश। लर्न टू स्पीक इंग्लिश, इंटरेक्ट विद योर फ्रेंड्स इन इंग्लिश। राइट? आपको नई लैंग्वेज सीखने में आलस आता है, एक ग्रुप बनाओ अपने फ्रेंड्स का कि आपने, हर एक बच्चे ने 5-5 नए वर्ड्स उस लैंग्वेज के, चाहे वो जर्मन हो, चाहे वो स्पेनिश हो, मतलब आपने ये स्किल्स सीखने हैं, लेकिन बर्डन लेके नहीं। तो अगर आप 5-5 वर्ड्स भी कोई यूज करेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब एक अच्छे से लैंग्वेज आपने, बेसिक एलिमेंट्री स्किल्स आपने हासिल की है। Greet each other in Spanish or in German, or if you want to improve your English, focus on that. So utilize your time. उसके बाद कई बच्चे आजकल, and it's a fact, उनको नींद नहीं आ रही है, उनका स्लीपिंग पैटर्न हो रहा है, so they are taking sleeping pills. तो that is not good, because ये भी अगर आप ले रहे हो, कई बच्चे विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के लेते हैं। कई बच्चे लेते हैं कि आपको क्या कहते हैं, वो रेड बुल करके कोई एक आ रहा है एनर्जी ड्रिंक, उसको लेते हैं सो दैट दे फील बूस्टेड, मतलब एनर्जी लेवल गेट बूस्टेड अप। स्टॉप डूइंग दैट। सो टेक्निकल स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स, ये दो चीजें होती है। टेक्निकल स्किल्स आपको नॉलेज के, जो आप जिस चीज को बारे में सीख रहे हो, है ना, तो उसके लिए आपको नॉलेज और आपको उसके लिए एम्पावर्ड करती है। बट ये जो लाइफ स्किल्स है वो आपको जिंदगी सही तरह से जीने के लिए एम्पावर करती है। सो यू नीड टू स्ट्रेंथन योर इमोशनल स्किल्स, एंड योर मेंटल हेल्थ केयर इज योर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है ना? तो आपको जो है लाइफ में ट्रिगर्स आते हैं, तो उसको आपने कैसे हैंडल करना है वो सीखना, क्योंकि ये चीजें, ये सिर्फ नेक्स्ट लाइफ, यू डिड राइट थिंग। तो लाइफ में, तो मेंटल हेल्थ केयर में जो बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप डिप्रेस्ड हो, आप फ्रस्ट्रेटेड हो और इसीलिए आपको इमोशनली एम्पावर्ड होना है। नो, नॉट दैट। इवन अ नॉर्मल पर्सन needs to be stronger in handling the emotions. It is the prime requisite of being successful. जैसे जैसे इवन आप कॉर्पोरेट में भी जाओगे, यू विल सी दैट कि आपको जो आपके टेक्निकल स्किल्स है ना, जो आपकी कॉलेज की डिग्री है, कई बच्चे आप लोग एमबीएस करोगे या अदर बाकी कोई डिग्रीज लोगे, तो वो आपको एंट्री देगी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। लेकिन आपको अगर जब सक्सेस लैडर चढ़ना है ना, तो आपको ये लाइफ स्किल्स सीखने होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लोगों को आपको संभालना है। अभी वो सर बोल रहे थे, मैंने थोड़ा सा सुना पिछले सेशन का, तो आपको पीपल मैनेजमेंट आना चाहिए। तो ये भी एक स्किल है, बिकॉज इट्स अनसर्टेन हाउ यू आर गोइंग टू फेस विच सिचुएशन, हाउ यू आर गोइंग टू फेस विच पीपल इन विच सिचुएशन, सो दैट इज ऑल अनसर्टेन। तो आपको इसीलिए ये चीजें संभालनी है, सीखनी है। तो कई बार हम लोग ये जो है बोल रही हूँ, कई बार आपको ट्रिगर्स अनवांटेडली आते हैं। आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे, बीच में आपका फोकस हट जाता है, तो उसको हमने कैसे हैंडल करना है? एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल है, दैट इज कॉल्ड एज पोमोडोरो टेक्निक। ये कॉर्पोरेट में बहुत यूज किया जाता है। इसका मतलब क्या है? कोई भी आप काम करते हो तो
आपको बीच बीच में ब्रेक लेना है, सो दैट आपका फोकस, आपका अटेंशन बरकरार रहे। यू कैन प्लान द ब्रेक्स, मतलब क्या, अगर सपोज आपको कुछ चैप्टर खत्म करना है, सो कई बच्चे क्या करते हैं, अभी मेरे पास एक यूपीएससी का स्टूडेंट आया था कि 3 टाइम्स उसने अटेम्प्ट करा पर नहीं हो रहा है उसका, so now he has started frustrating. So I asked him about his study pattern. He said, ma'am, I don't take break, I don't go out, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ. So I said, that is the flaw. So इसका मतलब आपका पढ़ाई करने का तरीका ही गलत है. आपने 3 बार अटेम्प्ट किया, 3 बार नहीं हुआ, इसका मतलब देखो, 1 बार 2 बार आपने दिया तो जो आपका स्टडी मटेरियल है उसकी आपकी प्रिपरेशन हो गई है. तो अगर आप थर्ड टाइम भी वही चीजें बार बार आप रिवाइज कर रहे हो तो आपका माइंड थक रहा है ना. द माइंड इज गेटिंग टायर्ड टू सी दोस थिंग्स अगेन एंड अगेन, सो दैट इज आल्सो रिक्वायर अ ब्रेक. तो आपको थोड़ा ब्रेक लेना है, स्टडी पैटर्न चेंज करना है, एक रिलैक्स मोड में करना है, and with certain other techniques, that boy, he was able to clear his prelims after attempting UPSC thrice. तो आपको जो है ना, आपको वो देखना है कि मैं कैसे अपने माइंड को बिजी रखूं कॉन्क्रीटली. मतलब क्या, अपने माइंड को बिजी रखना है अपने, लेकिन उसको बहुत ओवर यूज नहीं करना है. माइंड उतना ही ले पाएगा जितनी उसकी क्षमता है. अगर आपको कोई चीज, आप एक सपोज किसी, आप बॉटल में कुछ चीज डाल रहे हो, तो उतनी कैपेसिटी जितनी होगी उस टाइम पे उतना ही एब्जॉर्ब करेगा. लेकिन यू हैव टू लर्न द टेक्निक. एक स्टोरी बताती हूँ मैं आपको. अगर आपको एक बॉटल में सपोज मिट्टी 4 चीजें डालनी है, मिट्टी है आपके पास, छोटे छोटे पत्थर है, बड़े बड़े पत्थर है, और पानी है, और मार्बल्स है, सब, चलो 4 चीजें. ये 4 चीजें आपको जार में डालनी है. तो अगर आपने जार में पहले से ही मिट्टी से भर दिया तो बाकी चीजों के लिए जगह नहीं बचेगी. अगर आपने पहले ही जार में पानी डाल दिया और बाद में आपने पत्थर डाले, पानी विल गेट ओवरफ्लो. सो यू हैव टू बी टैक्टफुल व्हेन यू आर डीलिंग विद लाइफ. कैसे, अगर आपने, जैसे मैंने अभी 4 चीजों के बारे में बताया, अगर आप पहले छोटे छोटे पेपर, आप अपने पहले बड़े बड़े पत्थर डाले जार में, हो सकता है व्हाट्सएप पे वीडियो आपने देखा भी होगा. इट्स अ वीडियो रिलेटेड टू टाइम मैनेजमेंट. जस्ट इमेजिन, आप एक बॉटल में बड़े साइज के पत्थर डाल रहे हो. जब आप उसमें डालोगे, आप उसमें छोटे छोटे पत्थर भी डाल सकते हो क्योंकि थोड़ी थोड़ी गैप्स रहती है. उसके बाद आप उसमें सैंड भी डाल सकते हो क्योंकि उसके बावजूद भी थोड़ी थोड़ी गैप्स रहती है. और उसके बाद आप उसमें पानी भी डाल सकते हो क्योंकि वो उसमें से ड्रेन होके और सॉइल में से नीचे तक जा सकता है. तो इसी तरह से लाइफ में भी बहुत सारी चीजें आप एक साथ कर सकते हो, पर उसको कैसे ऑर्गेनाइज कैसे करनी है वो आपको आना चाहिए. तो जैसे मैं अभी आपको ये भी बात बता रही थी कि आपको कैसे अपने आप को फोकस रखना है, तो टेक सम ब्रेक फ्रॉम द एक्टिविटी विच यू आर इंडल्ज. जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, अगर उसको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो जस्ट टेक अ ब्रेक आफ्टर सर्टेन टाइम. That will freshen up your mood, freshen up your input taking capacity. So this is called as a Pomodoro technique. And see, taking online session is a challenge for both student as well as faculty because you are not able to develop that rapport as you develop in classroom and face-to-face teaching. Am I right? So please make it a point. जब भी आपके कोई online sessions है, तो आप लोगों को, जो भी सुनने वाले हैं, मेक इट अ पॉइंट कि उसके पहले 2 घंटे कम से कम आप कोई भी ऑनलाइन एक्टिविटी ना करें. तो उससे क्या होगा, आपका माइंड कभी भी ये जो ऑनलाइन सेशन है उसको सुनने के लिए फ्रेश रहेगा. जब भी आप ऑनलाइन सेशन सुनते हो, प्लीज फाइंड अ क्वाइट प्लेस वेयर यू विल बी एबल टू लिसन टू द स्पीकर, listen to the teachers, to the faculty if they are interacting with you.
so that you will not feel disturbed. अभी सारे लोग घर में हैं, करेक्ट? तो आपको एक ऐसी जगह बनानी चाहिए कि जहाँ पे डिस्टर्ब नहीं होगा। कोई भी आपके पीछे पूछ रहा है तो आप ईयरफोन निकाल के बात करते हो और देन वो लिंक आपका उठ जाता है। सो आप अपने घर वालों को बता के रखना है कि इस टाइम पे मेरा सेशन है, इस टाइम पे आई विल बी अनअवेलेबल, राइट? तो यू विल नॉट फील दैट द ऑनलाइन सेशंस आर स्ट्रेसफुल, बिकॉज व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज आपको अभी यही तरह से लर्निंग टीचिंग होगी। सो आपको टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज आपको सीखनी है and you have to be connected with your instructors regularly. Yes, thank you. Be on this slide. So आपको फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी टाइम बनाना है। तो जब भी आप ऑनलाइन सेशन अटेंड करोगे ना, तो आपने पहले थोड़ा एक्सरसाइज करो, फिर आप 1.5-2 घंटा आप एक जगह में बैठोगे। उसके लिए भी बहुत जरूरी है कि आपने एक रेगुलर एक्सरसाइज आपने करनी है, थोड़ा सा मेडिटेशन करना है। एंड अभी आप स्लाइड में देख रहे होंगे, यू हैव टू मेंटेन द बैलेंस। बैलेंस मतलब क्या? बैलेंस इज द की ऑफ दिस करंट सिचुएशन। आपको बॉडी, माइंड एंड सोल इसका बैलेंस बनाना है। इसका मतलब क्या है? बॉडी के ऊपर आपको ध्यान देना है, माइंड के ऊपर काम करना है, आप और आपके सोल को भी स्पिरिटेड रखना है। उसके लिए भी क्या स्ट्रेटेजी यूज करोगे आप? देयर इज वन स्ट्रेटेजी। ओके, सो वी हैव द स्ट्रेटेजी that is called as ABC strategy. We are nearing the end of the session, so please listen to it carefully. Okay, so अगर आपको cope up करना है इन सिचुएशन के साथ, so you have to be aware of the present situation. Then how you can maintain the balance and you have to take the control. I always talk about the SWOT analysis when I talk about individual improvement, and other things, other aspects of life where we need to work. So you have to think that you have to do a SWOT analysis. मतलब क्या? अभी आपने ये सेशन होने के बाद आज आपने एक काम करना है। आपने एक पेपर लेके, पहले तो मैंने वो लाइफ स्टेटमेंट का बताया था, दूसरा आपने ब्लूप्रिंट बनानी है आपके सक्सेस के लिए, लाइफ में क्या करना है आगे, ये चीजें है ये ऐसे ही रहेगी। अब इसमें से निकल के मुझे अपना फोकस सक्सेस के ऊपर डालना है, करेक्ट? अब तीसरी चीज आपने करनी है, एक पेपर पे आपने ये 4 लेटर लिखने हैं, SWOT, इसको बोलते हैं SWOT एनालिसिस। इसमें S स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ। प्लीज सी दैट कि आप लोग लिखो कि मेरे पास क्या क्या स्ट्रेंथ है। मेरे पास कम्युनिकेशन अच्छी है, मेरे पास ड्राइंग स्किल्स है, मेरे पास जो भी है, आई कैन आई एम वेरी मच टेक सेवी, मुझे उसमें इंटरेस्ट है। फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ। उसके बाद फाइंड आउट योर वीकनेसेस। जब आप वीकनेस की, मुझे इंग्लिश इंप्रूव करनी है, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, लोगों से बात करना मुझे नहीं आता, या मुझे टेक्निकल स्किल्स में कमी है मेरे में, तो वो चीजों के ऊपर ध्यान दो आप, और उसको आपने दूर करना है। उसके बाद आपने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जानने के बाद, इनके साथ मेरे पास लाइफ में मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरी कमियां हैं और ये मेरी स्ट्रेंथ है, तो इनके साथ मेरे पास लाइफ में क्या अपॉर्चुनिटीज है, उसके बारे में सोचो आप। और T स्टैंड्स फॉर फ्रेंड्स, कि मेरे सक्सेस के पाथ में क्या रुकावटें हैं, तो आपको उसको दूर करना है। ये चीजें आपने, अभी वीकनेस और थ्रेट, देयर इज अ डिफरेंस। वीकनेस मतलब आपकी खुद की, कि मुझ में इंग्लिश लैंग्वेज का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, मुझे पर्सनालिटी को लेके इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो सारी चीजें। मेरी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स मेरी वीकनेस है, कि मैं ऑर्गेनाइज नहीं हूँ, वो मेरी वीकनेस है।
थ्रेट मतलब क्या, ये जो भी है कि अभी I cannot control the outside situation. I cannot get the job immediately to corporate. So these are the threats. So what the different threats and weaknesses? So threat मतलब कि क्या क्या hindrances है आपके, क्या क्या hurdles है, क्या obstacles है आपके सक्सेस पाथ में, तो चीजों के ऊपर आपने ध्यान देना है और इसको दूर करने के और एक आपने डेवलप करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज पॉजिटिव माइंडसेट. सो यू हैव टू फोकस ऑन द पावर ऑफ पॉजिटिविटी. आपने लाइफ के प्रति सकारात्मक रहना है कि चीजें अच्छी होगी लाइफ में. जो हम लोग फोकस कर रहे हैं एंजाइटी के ऊपर, उसको मिटा के हमने फोकस पॉजिटिविटी के ऊपर और ब्राइट फ्यूचर के ऊपर रखना है, क्योंकि जो आप सोचते हो वैसी चीजें आपके लाइफ में होती हैं. थिंक पॉजिटिव, फील ब्लेस्ड. एंड नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो जैसे हमने बात करी कि हमें अपने बॉडी का भी, अभी तक हम इमोशनल स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे, साथ साथ उतना ही जरूरी है कि आपको अपनी सेल्फ केयर करनी है. फिजिकल केयर मतलब क्या, कि आपको अभी आजकल के C-19 के इसमें लॉकडाउन पीरियड में इतनी सारी रेसिपीज फ्लडेड हो रही है व्हाट्सएप के ऊपर, है ना, कि आज हमने ये डिश बनाई, वो डिश बनाई. दैट्स गुड, बट सेम टाइम प्लीज सी टू इट यू आर हैविंग अ न्यूट्रिशियस डाइट. वो बहुत जरूरी है. यू पीपल आर नॉट गोइंग आउट, यू आर नॉट गेटिंग विटामिन डी. प्लीज take care of it. You have to keep your body fit and healthy and active, because healthy mind will be there in a healthy body. Just imagine आप कभी भी बीमार होते हो तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान होता है कि जो चीजें जो आप करना चाहते हो लाइफ में वो नहीं कर पाते. आपका कितना टाइम वेस्ट होता है. सो अपने बॉडी को फिट रखना आपकी जिम्मेदारी है. साइकोलॉजिकली फिट करना है, इमोशनली फिट रखना है अपने आप को, तो हमने अभी बात की. सोशली मतलब क्या, अभी आप जो सोशल इंटरेक्शन करोगे प्लीज सी टू इट दैट इट इज अ हेल्थी एंड पॉजिटिव, or you are dealing with positive people. Try to interact with the people with positive mindset. Okay, and please see to it that if you can be little spiritual. Spiritual मतलब ये नहीं बोल रही मैं या पूजा पाठ करने में लग जाए. No, explore yourself. That is the spirituality. See, there is a difference between spirituality and religion. रिलीजन जो है वो आपको बताता है कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है. आपके रिलीजन में ये रखा है, अगर ये चीज नहीं करोगे तो आप नरक में जाओगे, ये चीज करोगे पुण्य मिलेगा. इट क्रिएट्स अ बाउंड्री. वेयर स्पिरिचुअलिटी मतलब इट सेट्स यू फ्री. वो आपको अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में क्लैरिटी देती है. ट्राई टू फिगर आउट योर पैशन, ट्राई टू फिगर आउट योर पर्पस इन लाइफ. So that is what I mean. That is what I mean by the word spiritual. Focus on your spiritual development. अपने आप से हो जाओ. Interact with yourself. Find out your real calling. Now you're getting time to find your passion, to figure out your purpose in life. Each and every person in this earth, no, he or she is unique. भगवान की कोई भी दी हुई चीज बेकार नहीं जाती. So you are a unique creation of God. So how can you have a role to perform? And if you see the big leaders, they have understood their calling and they have worked towards it. They have nurtured themselves to attain their passion or purpose in life, and that's how they have become what they are now. So it's not some time to understand yourself, find out क्या करना है लाइफ में. कई बार देखो लोग ना कुछ और पढ़ते हैं और कुछ और लाइफ में करते हैं. ऐसे बाद में उनको रियलाइज होता है कि ये चीज मुझे कि मेरे लिए नहीं है ना. तो
इसीलिए जब आपको अपनी कॉलिंग पता चलती है तो इवन संजय कपूर जो कि एक निग्लेक्टेड फील्ड था कुकिंग का जेंट्स के लिए, उसमें भी ही हैज एक्सेल, है ना। संजय कपूर का आपने नाम सुना होगा, ही इज अ वेरी रिनाउंड शेफ, बट वाज हिज कॉलिंग। कितने लोग हंसे होंगे उसकी तरफ उस टाइम पे जब उसने बोला होगा कि मुझे कुक बनना है, मुझे मास्टर शेफ बनना है ना। बट ही न्यू दैट वाज हिज कॉलिंग एंड ही गॉट द सक्सेस। कई लोग हैं कि उनको बिजनेस करना होता है, उनको पता है मुझे सर्विस नहीं करनी है। So those who are passionate, because जब आपको कॉलिंग पता चलती है, so then you work passionately, फिर आपको वो फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग नहीं आती, so आपको वो बोरियत नहीं लगती लाइफ में। So try to figure out that. So कई लोग जो आर्टिस्ट है, पेंटिंग करते हैं, कई लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में मास्टर करते हैं, so they know okay, what is their passion. Now Amitabh Bachchan, he's a science student, but he never thought acting was his passion. And now we know at the age of 70 plus, he's young, full of energy and full of enthusiasm towards his work. है ना? तो वो चीजें आपको, आप देखो उनको, देखो उनको, you will feel so inspired. So try to figure out. Ma'am, next slide please. So आपको try, you will have to work to keep yourself happy. देखो जब भी आप हैप्पी होते हो तो आपके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं. देयर आर सच केमिकल्स व्हिच आर secreted and these are the chemicals which makes you happy. They are called as serotonin, dopamine, oxytocin or endorphin. So these are the four chemicals which are naturally secreted. तो इसको हम बोलते हैं डोज, EOSE. तो ये जो आपको हैप्पीनेस लाइफ में बरकरार रखना है तो आपको ये डोज लेना होगा, डोज क्रिएट करना होगा. कैसे? देखो these are the 10 फूड्स मैंने इसमें स्लाइड में मेंशन किए हैं जो आपका सेरोटोनिन लेवल बढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं. सो अगेन हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है ना. और जैसे ये आप स्लाइड पे देख रहे होंगे कि आप लोग जब ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, जब आप लोग यू आर लविंग एंड काइंड एंड कंपैशनेट टुवर्ड्स अदर, तो ये सारे जो है chemicals है वो, these are the hormones which are naturally created by your body. और एंडोर्फिन, जब आप एक्सरसाइज करते हो ना तब ये हार्मोन सिक्रीट होता है, तब ये केमिकल सिक्रीट होता है. तो आपको इसलिए एक्सरसाइज करना डेली बहुत बहुत इसेंशियल है. बिकॉज ये मार्केट में कोई इसकी पिल नहीं मिलती कि जो आप इससे, जो नेचुरल है वो नेचुरल है. तो अगर आप लोग ये इस तरह से ये केमिकल्स आपके बॉडी में सिक्रीट कर पाए तो यू विल बी वेरी हेल्दी हैप्पी. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. या तो अगर हम लोग ये जो बात करते हैं बार बार स्ट्रेस की वगैरह, तो स्ट्रेस इज नथिंग बट आपका जो रिस्पॉन्स है, जो प्रेशरफुल प्रेशराइज और स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है, उसको आप कैसे रिएक्ट करते हो, कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं. जो आप नहीं झेल पाते तब आप स्ट्रेस पे आ जाते हैं. तो हमको वो कोपिंग अप स्किल्स बढ़ानी है. मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो ये देखो, ये अपने ऊपर है. जैसे मैंने आपको वो आलू का कॉफी का दिया था, कुछ लोग स्ट्रेसफुल सिचुएशन में बिल्कुल टूट जाते हैं, कुछ जो है थोड़ा सा इफेक्ट होते हैं. ये जो बेंट वो है ना नेल्स, वो मतलब कुछ थोड़ा सा टूट जाते हैं उसमें, और जो बिल्कुल स्ट्रेट है वो मतलब वो इफेक्टिवली उसको डील करते हैं. बिकॉज स्ट्रेसफुल सिचुएशन तो लाइफ में आई ही आएगी, उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है. कंट्रोल किसके ऊपर है? उसके साथ आपने कैसे डील करना है. मैम नेक्स्ट स्लाइड. सो आपको ये चीजें सीखनी है. आपको दो ही रिस्पॉन्स होती है जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है. या तो भाग लो, मतलब उस सिचुएशन से भाग लो, या भाग लो, पार्टिसिपेट. सो यू हैव टू बी ब्रेव एंड एक्टिवली फेस द सिचुएशन. सो अभी ये जो पैंडेमिक है उसमें आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है कि उसको आपने फेस करना है इफेक्टिवली, अपने इमोशनल स्किल्स स्ट्रॉन्ग करके.
Correct? And next slide. We'll go faster now. So there is one part in our brain that is called as amygdala. तो आमिर खान ने बताया था ना कि all is well, 3 Idiots मूवी देखी होगी. तो अब इसको बोलते हैं, इसको बताना जरूरी है कि all is well. जब इसको ट्रिगर्ड हो जाता है तब हम लोग का इमोशनल बैलेंस हिल जाता है और हम लोग चिंतित हो जाते हैं, एंशियस हो जाते हैं, स्ट्रेसफुल महसूस करते हैं. सो यू हैव टू सी दैट जो हमने पहली सारी बातें की है वो अगर हम लाइफ में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे तो दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन विल बी always always be receiving the information from your brain. All is well in my life. I'm able to deal effectively with all the stressful situation in my life. So you will feel a mental peace and mental calmness. Ma'am, next slide please. So आपको ये महसूस करना होगा कि आपके बॉडी में कुछ फिजिकल, साइकोलॉजिकल, बिहेवियर, इमोशनल चेंजेस देखेंगे आपको, तो यू विल अंडरस्टैंड कि यू आर अंडर स्ट्रेस. वो आपको जागरूक रहना है इसके प्रति. आप जब आप सेल्फ एनालिसिस करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि मेरे में बिहेवियर में चेंज हो रहा है या कुछ इमोशंस में चेंज हो रहा है ना. सडनली आप एंग्री, चिड़चिड़ापन आएगा, सडनली यू फील इरिटेटेड एंड सडनली आपको बहुत ज्यादा खाने का इच्छा होगी. तो ये सारी चेंजेस हो जाएंगे आपकी लाइफ में. तो समझ लेना कि आपको स्ट्रेस है. ये ऑटोमेटिकली आपके अंदर चेंजेस आते हैं. तो जब भी ये चेंजेस आएंगे आपके दोस्त भी आपको बताएंगे कि क्यों आजकल छोटी छोटी बातों पे आप चिढ़ रहे हो, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो रहे हो. So that is an indication you are suffering a minor amount of stress in your life. And next slide. So जैसे कि हमने बात की कि each individual will suffer stress level to the ability to cope up with stress. हर एक को स्ट्रेस का असर हर एक बंदे के ऊपर अलग होगा, लेकिन कुछ चीजें कॉमन है, कुछ टेक्निक्स कॉमन है जो कि हर बंदे को, हर इंडिविजुअल को स्ट्रेस को कोप अप करने की शक्ति देती है. मैम नेक्स्ट स्लाइड. सो उसमें आती है ब्रीदिंग पैटर्न. आपको योगा करना बहुत जरूरी है. कई बच्चों को योगा बुरा लगता है. जरूरी नहीं आप बहुत सीवियर योगा करो, लेकिन आप सूर्य नमस्कार भी रेगुलरली करोगे. Your most of the yoga is taken care of. Music सुनिए आप लोग, फ्रेंड के साथ बातें करिए. And one thing you can learn to be grateful. मतलब क्या, जो आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स है ना उसको appreciate, उसको acknowledge करना सीखिए. Then you will not feel stress. हम लोग सोचते मेरे पास क्या नहीं है. जो चीजें आपके पास है ना उसके ऊपर फोकस करो. Then you will realize कि मैं कितना खुश हूँ, कितना खुशनसीब हूँ मैं. तो आपको ब्लेसिंग्स के ऊपर फोकस करना है. जब आप ब्लेसिंग्स के ऊपर फोकस करोगे तो आपको स्ट्रेस, एंजाइटी नहीं महसूस होगी. देखो आप अपने घर में हो, सब कुछ खाने को मिल रहा है, इंटरनेट है, यू आर ब्लेस्ड. देयर आर सो मेनी पीपल जो भाग रहे इधर उधर. टीवी आप देखते हो, माइग्रेंट्स है ना, मजदूर लोग है, लेबर्स है, उनके पास खाने को नहीं, जॉब नहीं. Think about other people, and then you will realize how blessed you are. So that will lessen your anxiety level. That will lessen your stress level. Just by the feeling grateful for the things which you are blessed with. Up next, please. Next slide. Yeah. तो मैंने योगा के बारे में बताया. जाते जाते एक टेक्निक और बताती हूँ. कभी भी आपको लाइफ में स्ट्रेस मिले, कभी भी आपको लाइफ में स्ट्रेसफुल लगे, तो जस्ट डू वन स्मॉल टेक्निक. क्या करना है आपने. देखो जब भी आपको किसी भी सिचुएशन को लेके डर लगता होगा तो योर बॉडी विल गिव यू इंडिकेशन. दिस व्हाट, कई बार किसी का गला सूखता है, कई बार किसी को पेट में बटरफ्लाइज होते हैं, मतलब बोलते हैं ना
मुझे पेट दर्द हो रहा है या मुझे हेडेक हो रहा है, you will feel that your body will give you indication. So what you can do is, जब भी आप लोग किसी भी stressful situation में हो, just give it a pause, think about stressful situation and think which organ you feel affected. किसी को गला सूख रहा होगा, किसी को हार्ट बीट बढ़ रहे होंगे, किसी को पेट में अजीब सा लग रहा होगा, किसी के हाथ पैर ठंडे पड़ रहे होंगे, हाथ पैर में स्वेटिंग आ रही होगी, तो आपने क्या करना है, जस्ट थिंक अबाउट सम कलर, एनी कलर. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर फीलिंग कि आपको गले में यू आर फीलिंग ड्राइनेस, just think that there is a black color in your throat. Then what you can do is you do the breathing technique. इनहेल करना है और जब आप एक्सेल करोगे तो धीरे धीरे एक्सेल करना है ब्रेथ को और सोचना है कि वो ब्लैक कलर आपके थ्रोट से बाहर निकल रहा है. It's a very powerful technique and please practice it gradually. Any stressful situation in your life, you can handle it and you will be able to get some kind of relaxation by use of this visualization technique. वो स्ट्रेस आपके लाइफ से बाहर निकल रहा है just by combining with the breathing technique. And next slide. And then there is a technique called as tapping. There are 9 points जो कि आप टैप कर सकते हो. What I can tell you is, आप लोग गूगल करना, you will get the videos, you will get the information. This is also very effective and very powerful technique to cope up with the stress and anxiety. ये usually foreign countries में बहुत यूज की जाती है, even before the operation. Hospitals में a patient is given this tapping treatment to reduce his anxiety level before facing the operation, before undergoing an operation. So there are 9 points. If time permits, I can tell you how to do it, and you can Google it also. It's also another very effective technique. कहीं पे भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, and many times you can repeat this. Next slide, please. So, with the few techniques and with all this thing, I just want to conclude my session that life is beautiful. Just keep this one thing in mind. Your life is very beautiful. Life is very, very precious. So learn from yesterday, live for today, and hope for tomorrow. Because it is the hope which keeps us going. So hope for a better tomorrow, hope for a better future. So enjoy your life as it comes and always be happy. So Thank you, ma'am. Thank you for a wonderful session. And thank you for providing us guidance on how to tackle with uncertainty during such pandemic situation.